Hello everyone, I hope you guys are absolutely fine, safe at home. Getting into our content, today we are going to learn History Unit 1, The Advent of Europeans to India. Here, the meaning of advent is arrival of a notable person or thing. Arrival of notable person or thing. So the title means that the arrival of the Europeans to India. In this chapter, we'll learn the trade and commerce relationship India had with Europeans, the arrival of Europeans to India for trade, which are Portuguese, Dutch, English or British, and French. The Carnatic Wars. There were three Carnatic Wars between British and French. Battle of Plassey, Battle of Buxar, and dual government system. The British policy of aggressions. There were trade and commerce relations between India and Europe since ancient times. There was a great demand for Indian spices like pepper, cardamom, ginger and many other spices in Europe. मतलब इंडिया के कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले जैसे काली मिरी, अदरक, इलायची का अच्छे दाम में बिक रहा था। कहाँ? यूरोप में। तो अभी कनाडा में पेपर को शायद कालमेम्सू बोलते हैं, कैडमेम को एलक्की बोलते हैं और जिंजर को सूंटी बोलते हैं। हाँ, सूंटी बोलते हैं। अब हम देखेंगे द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया, यूरोप एंड अदर एशियन कंट्रीज कंटिन्यूड इवन ड्यूरिंग द मिडल एजेस। अब ये जो बात है पेपर, कार्डमम, जिंजर, ये तो बहुत पहले की बात है, एंशियंट टाइम्स की बात है। वही चीज़ें मिडल एजेस में भी चलने लगे। उनका दाम या फिर ट्रेड मिडल एजेस में भी चल रहा था। अब अरब मर्चेंट्स कैरिड एशियन मर्चेंडाइज इनटू कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, और इटालियन मर्चेंट्स वुड बाय दिस गुड्स एंड देन सेल देम इन यूरोपियन कंट्रीज। Constantinople was gateway of European trade. Arab merchants had gained monopoly over the trade in Asian countries. Italian traders had gained monopoly over Europe. Merchandise from Asia brought good profit to Italian merchants. अब होता क्या था, अरब मर्चेंट्स जो है वो एशिया के कमोडिटीज़ को इटालियन ट्रेडर्स को बेचते थे और इटालियन ट्रेडर्स बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचते थे। जैसे ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, पोर्चुगीज़ हो गया, फ्रेंच हो गया, ऐसे कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचते थे। अब इससे अरब मर्चेंट्स का मोनोपोली एशिया में बढ़ गया और इटालियन ट्रेडर्स का यूरोप में। इसके बाद क्या हुआ? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप वॉज टेकिंग प्लेस टू सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एज वी हैव सीन बिफोर, सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज ओनली द वे फॉर द ट्रेड रूट, ओनली ट्रेड रूट। ट्रेड जो है पॉसिबल था सिर्फ सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थ्रू। अब क्या हुआ? 1453 को ऑटोमन टर्क्स या टर्किश लोगों ने कैप्चर कर लिया सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को, और इसका जो परिणाम क्या हुआ, सारे जो ट्रेड रूट्स है जो सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से होते थे सब उनके अंडर आ गए। अब उन्होंने क्या किया? ट्रेड को अनप्रॉफिटेबल किया, मतलब ट्रेड को मुनाफे लायक नहीं किया, उससे मुनाफा नहीं होता था। कैसे? उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लीव किया। लीविंग का एक वर्ड तुम लिख सकते हो, इम्पोज्ड। बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करने लगे।
अब क्या हुआ, इटालियन ट्रेडर्स का तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, वो भी बंद हो गया। अब स्पेन एंड पोर्चुगल जो थे वो ट्राई कर रहे थे इटालियन ट्रेडर्स के मोनोपोली को ब्रेक करने को। दे वर ट्राइंग to break the monopoly. They were also trying to earn more profit. Like the Italian traders were gaining profit, Spain and Portugal also tried. How they tried? They started encouraging enterprising sailors to find new sea route to India. As land route was not possible because they were under the Constantinople was under Turks. So it was only possible to find another way. So they started encouraging sailors to find sea route to India, a new sea route. For this venture to happen quick, compass, astrolabes and gunpowder inventions had good importance. Now we'll see how a new sea route was discovered, a new sea route to India, which was discovered by Vasco da Gama, a Portuguese sailor, left Lisbon. Lisbon is a place, and reached Kappadu near Calicut. Kappadu near Calicut. It's not Calcutta, it's Calicut near west coast of India in 1498. So please remember this date. This is very important. 1498. 1498. Now, this became the trade route between India and Europe for many years. Portuguese were thus the first, they were the first to re-establish, not establish but re-establish trade between India and Europe. री-एस्टैब्लिश का मतलब क्या हुआ, अब ट्रेड रूट तो था लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं था, तो बहुत कम चीज़ें आते जाते थे। ट्रेड अचानक से बंद ही कर दिया टर्किश के ज़्यादा टैक्स देने पे। तो अब वापस स्थापना की गई किसकी, ट्रेड की। कहाँ, इंडिया और यूरोप में पोर्चुगीज़ ने की वो स्थापना। जो वापस स्थापना की थी उन्होंने, वो पोर्चुगीज़ ने की थी और वो पहले थे। अब 1869 को एक कैनल बना गया, स्यूज कैनल करके, इजिप्ट के पास बनाया गया था, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने के लिए। जब तक ये बनाना था, ये सी रूट था वास्को डा गामा का, जो उन्होंने इस्तेमाल किया था ट्रेड के लिए भारत और यूरोपीय देशों को जोड़ने के लिए। जो जहाज थे उनको केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ता था, दी सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका का जो अंतिम टिप है वो था द केप ऑफ गुड होप। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड लंदन थ्रू केप ऑफ गुड होप इज 10,800 नॉटिकल माइल्स। अब ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नोटिस में है, इसको आपको जानकारी के लिए दिया गया है। ये एग्ज़ाम पर्पज़ से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो। एक नॉटिकल माइल इज़ 1.85 किलोमीटर्स। सो इसको 1.85 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। अब हम आते हैं यूरोपियन ट्रेड कंपनीज। अब जब यूरोपियंस आए, वो ऐसे ही नहीं आ गए कि हमें ट्रेड करना है, वो कुछ कंपनीज बना के आए थे। तो सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज़। पोर्चुगीज़ were first to arrive in India for trade and were also the last to leave by sea route. सी रूट से आने वाले वो पहले थे और आखिरी भी थे। अब क्या हुआ, वास्को डा गामा आए, उनके बाद आए फ्रांसिस्को दे अल्मेदा। ये नाम याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आए इंडिया में एज वाइसरॉय बन के आए थे पोर्चुगीज़ के। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके तहत लैंड सुप्रीमेसी से भी ज़्यादा वो लोगों ने वाटर सुप्रीमेसी को इम्पोर्टेंस दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने सुप्रीमेसी ओवर सी कर दिया, लैंड के छोड़ के उन्होंने सी सुप्रीमेसी को ध्यान दिया। और उनके बाद आए अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। ये भी जो थे, इनका नाम आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
वो अल्मेदा के बाद आए थे, फ्रांसिस्को अल्मेदा के बाद आए थे, और वो रियल फाउंडर कहलाए जाते हैं पोर्चुगीज़ एम्पायर के। पोर्चुगीज़ एम्पायर के वो रियल फाउंडर है, क्योंकि उन्होंने एक युद्ध लड़ा था सुल्तान ऑफ बीजापुर के साथ 1510 में, और उन्होंने गोवा जीता था। उसके बाद से ही गोवा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया पोर्चुगीज़ का भारत में। अब हम पढ़ेंगे, द पोर्चुगीज हैड एब्सोल्यूट मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, बट द पावर डिक्लाइंड विद अराइवल ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब पोर्चुगीज़ का जो था मोनोपोली बहुत सही था इंडिया में, लगभग 100 साल के लिए, एक शतक के लिए, पर उनका जो ताकत है वो कम हो गया ब्रिटिश और फ्रेंच के आने से। इंग्लिश यानी ब्रिटिश और फ्रेंच के आने से उनकी ताकत कम हो गई। अब जो दूसरे यूरोपियन आए थे वो थे डच कहाँ से, वो हॉलैंड और नेदरलैंड के जो देश हैं वहाँ से आते हैं। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इन्होंने एक कंपनी बनाया था 1602 में। इनका एम क्या था, सिर्फ इनका एम था बिजनेस करना है ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। तो उन्होंने कुछ कंट्रीज़ देखे, जैसे इंडिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया। उन्होंने अपने वेयर हाउसेस बनाए थे। कहाँ बनाए भारत में? सूरत, ब्रॉच, काम्बे, कोचिन, नागपट्टिनम, मसूलीपट्टनम, चिंसुरा और कई सारे जगहों पर उनके वेयर हाउसेस उन्होंने बना लिए। विद दिस दे ब्रोक द मोनोपोली ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया। ये सब होने के बाद इनका मोनोपोली पोर्चुगीज़ से बढ़ गया। इनका जो ट्रेड रिलेशन था वो पोर्चुगीज़ से बढ़ गया। बाद में इन्हें भी कंपटीशन फेस करने नहीं हुआ इंग्लिश और फ्रेंच के बीच, तो ये भी सिर्फ स्पाइस आइलैंड्स में लिमिट कर गए खुद को, जो है इंडोनेशिया में। अब बढ़ते हैं, वेयर हाउसेस कहाँ है? नॉर्थ में है। वेयर हाउसेस वेर प्लेस टू स्टोर मर्चेंडाइज, ह्यूज वॉल्स वेर बिल्ट अराउंड देम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और वेयर हाउसेस जो थे वो थे जो आप ट्रेड के लिए जो सामान है, कमोडिटीज़ है, उनको सेफली रखने के लिए वेयर हाउसेस बनाए जाते। वो वेयर हाउसेस को प्रोटेक्शन देने के लिए बड़े बड़े वॉल्स बिल्ड करते थे, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। अब पढ़ते हैं इंग्लिश। 31 दिसंबर 1600, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है ये। 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर निकाला, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ 15 साल तक ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो उन्होंने चार्टर निकाला, इसके तहत 15 साल तक कर सकते हैं। तो कंपनी ने बिजनेस फॉर्मली, मतलब एकदम स्मूथली चालू किया 1613 से। अब आते हैं मुग़ल एम्परर जहांगीर, जिन्होंने एक रॉयल परमिशन दे दिया किन्हें? इंग्लिश को। किसके लिए? उनका फर्स्ट वेयर हाउस या फैक्ट्री भी बोल सकते हैं उसे, सूरत में बनाने के लिए। सूरत में जहांगीर ने परमिशन दिया कि वो अपना पहला फैक्ट्री और या फिर वेयर हाउस स्थापित कर सकते हैं। 1617 में सर थॉमस रो आए जहांगीर के कोर्ट में, और रॉयल एम्बेसडर थे वो। कहाँ से आए थे? कोर्ट ऑफ जेम्स वन से आए थे, जेम्स वन के कोर्ट से आए थे। क्यों आए थे? वो परमिशन लेने आए थे जहांगीर की कि वो अपने फैक्ट्रीज मुग़ल राज्य के दूसरे जगहों पर भी स्थापना करने हेतु वो आए थे। अभी जो इंग्लिश जो है उन्होंने अपने फैक्ट्रीज आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच में बना लिए। किसके तहत? क्योंकि जहांगीर ने उन्हें परमिशन दे दी। अब 1639 में इंग्लिश ने क्या किया? मद्रास ले लिया। किंग ऑफ चंद्रागिरी से उन लोगों ने मद्रास राज्य ले लिया, और वहाँ पे एक फोर्ट बनाया, सेंट जॉर्ज फोर्ट। अब फिर हम पढ़ते आगे। चार्ल्स टू जो थे वो थे प्रिंस ऑफ इंग्लैंड।
उन्होंने बॉम्बे को एनुअल रेंट मतलब सालाना वो 10 पाउंड देंगे, 10 पाउंड लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। कब? 1668 को। ये डेट भी याद रख लीजिए आप, 1668 को। हालांकि डेट को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी एक डेट एक आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखने के लिए आपको हेल्प करता है। अब 1690 को इंग्लिश ने ब्रिटिश ने 3 गांव खरीद लिए, सुल्तानौती, कलिकता और गोविंदापुरा। ये कहाँ थे? ये बैंक्स ऑफ हुगली रिवर में थे, बंगाल के इधर, बंगाल प्रेसिडेंसी के इधर थे। और वहाँ पे उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया। अब ये जो फोर्ट विलियम है वो सिटी ऑफ कलकत्ता के पास था। ग्रीव अराउंड फोर्ट, सिटी ऑफ कलकत्ता, ग्रीव अराउंड दिस फोर्ट। अब 17th सेंचुरी में इंग्लिश ने अपने 3 प्रेसिडेंसीज को बना लिए थे, जो थे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। और अब 18th सेंचुरी में उन्होंने कलकत्ता को अपना कैपिटल बना दिया। कलकत्ता उनका कैपिटल बन गया। और उन्होंने अपने खुद के सिविल एंड क्रिमिनल लॉस, प्रोसीजर्स, कोर्ट्स इन दी एरियाज वेर अंडर कंट्रोल। जहाँ पे उनका रूल चलता था, जहाँ पे वो रूल करते थे, वहाँ पे उन्होंने उनके खुद के सिविल और क्रिमिनल लॉस लगा दिए। अब हम बढ़ते 4th जो यूरोपियन आए थे वो है फ्रेंच। अब फ्रेंच के कब आए? फ्रेंच आए थे 1664 में। उनकी कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, FEIC। 1664 में आई थी। उनका भी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में ही बना था 1668 को। बाद में उन्होंने अपने फैक्ट्रीज़ को मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, माहे, कराईकल, कासिम बाज़ार, बालासोर में भी बना लिए। 1674 में फ्रेंच ने वलीकंडापुरम करके एक गांव ले लिया। वलीकंडापुरम, ये गांव का नाम याद रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही जो वलीकंडापुरम जो है, इन्होंने लोकल मुस्लिम ऑफिशियल से लिया और उसे डेवलप किया एक मेजर ट्रेड सेंटर में। और उसको अभी हम पुडुचेरी या पौंडीचेरी भी कहते हैं। इस सब डेवलपमेंट के बावजूद वहाँ पे ड्यूप्लेक्स करके एक गवर्नर जनरल आए, फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे, 1746 को आए थे वो पौंडीचेरी में, जिनका हाई एम्बिशन था कि फ्रेंच एक मेजर पावर बन गया है साउथ इंडिया में। अब इनके एम्बिशन की वजह से कार्नाटिक वॉर्स लड़े गए इंग्लिश के साथ। अब ड्यूप्लेक्स जो है उनका बहुत ज़्यादा इच्छा था कि साउथ इंडिया में फ्रेंच का राज हो। तो इनके इस जुनून के वजह से कार्नाटिक वॉर्स लड़े गए इंग्लिश और फ्रेंच के बीच। अब हम देखते हैं कंपटीशन बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच। द पोर्चुगीज, द डच had withdrawn from India, unable to withstand the competition from French and English। आपने देखा होगा ऊपर कि पोर्चुगीज़ और डच ने बैक ऑफ कर दिया क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच के कंपटीशन की वजह से 18th सेंचुरी तक। फाइनली आखिर में फ्रेंच एंड इंग्लिश resorted to show strength in order to establish their political supremacy over India. Meanwhile, political instability arose in regions of Hyderabad, Carnatic, eastern part of Tamil Nadu. Both English and French tried to exploit situation in their favor. This led to 3 Carnatic wars. अब क्या हुआ? पोर्चुगीज और डच ने तो मान ली हार फ्रेंच और इंग्लिश के झगड़े में 18th सेंचुरी तक। अब क्या हुआ? इसी दौरान वो लोग
पॉलिटिकल सुप्रीमेसी देख रहे थे इंडिया के ऊपर। इसी दौरान इंडिया में भी प्रॉब्लम हो गई कि इंस्टेबिलिटी आ गई। कहाँ पे? हैदराबाद और कर्नाटक रीजन में, जो अभी ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु है। अभी इंग्लिश और फ्रेंच को तो इसमें फ़ायदा हो गया कि इंस्टेबिलिटी अरोज हो चुकी है, इसे एक्सप्लॉइट करके हम हमारा राज कर सकते हैं। उन्होंने वही किया, उन्होंने एक्सप्लॉइट करने को देखा उनके फेवर में, और उन्होंने 3 कार्नाटिक वॉर्स लड़े। सो अभी कार्नाटिक वॉर्स तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो मैं सेकेंड पार्ट में करूँगा, जल्दी ही आ जाएगा। अभी हम बढ़ते कुछ की पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम लोगों ने अभी पार्ट में पढ़े हैं। सो हियर वी आर। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो हम लोगों ने अभी हम पढ़े थे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूरोप, देयर वॉज ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस लाइक पेपर, जिंजर एंड कार्डमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब मर्चेंट्स कैरिड एशियन मर्चेंडाइज इनटू कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बैजेंटियम एम्पायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैजेंटियम कौन सा एम्पायर? अगर आपको पूछा जाएगा ईस्टर्न रोमन एम्पायर को क्या बोला जाता है, तो आप बैजेंटियम एम्पायर भी बोल सकते हो। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सेंटर था वो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, जिसे गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड भी कहते हैं। अब जो अरब मर्चेंट्स जो है, उन्होंने मोनोपोली गेन किया था एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। इटालियन ट्रेडर्स ने मोनोपोली गेन किया था यूरोप के ऊपर। अब 1453 को ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया, और जो ट्रेड रूट जो कनेक्टिंग थे कॉन्स्टेंटिनोपल से, वो आ गए उनके अंडर। उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स दे दी, उन पे लीव कर दिया या फिर इम्पोज कर दिया, जिस वजह से ट्रेड इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। उसी दौरान जो स्पेन एंड पोर्चुगीज़ जो थे, वो ट्राई कर रहे थे कि वो इटालियन ट्रेडर्स की मोनोपोली को ब्रेक कर ले। उन्होंने सेलर्स को इनकरेज किया ताकि वो एक नया सी रूट ढूंढे इंडिया का। और इस जो वेंचर में है या फिर इस जो वॉयेज में है, कंपास, एस्ट्रोलेब्स और गन पाउडर का बहुत अच्छा योगदान था। वास्को डा गामा ने सबसे पहला ट्रेड रूट ढूंढा था केप ऑफ गुड होप थ्रू, जो सदर्न मोस्ट टिप है, और वो पोर्चुगीज़ सेलर थे जिन्होंने लिस्बॉन से निकले थे और कप्पाडो पहुँचे थे कैलिकट के पास 1498 में। पोर्चुगीज़ पहले थे जिन्होंने री किया था ट्रेड को इंडिया और यूरोप के बीच में। फ्रांसिस्को दे अल्मेदा ने जो पहली बार आए थे एज अ वाइसरॉय वास्को डा गामा के बाद, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया था, जिसके तहत उन्होंने सुप्रीमसी ओवर सी देखा इंस्टेड ऑफ सुप्रीमसी ओवर लैंड। उनके बाद आए अल्फोंसो दी अल्बुकर्क, जिन्हें हम रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ एम्पायर भी कहते हैं इंडिया में। उन्होंने 1510 में बीजापुर, सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा जीत के गोवा को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना दिया। अब डच जो है हॉलैंड और नेदरलैंड से आते हैं। उन्होंने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उन्होंने सूरत, ब्रॉच, काम्बे, कोचीन, नागापट्टिनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम में अपने वेयर हाउसेस बनाए। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर इशू किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो 15 साल तक ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिर मुग़ल एम्परर जहांगीर ने उन्हें एक रॉयल परमिशन दे दिया इंग्लिश को कि वो अपना पहला फैक्ट्री और वेयर हाउस बना सकते हैं सूरत में। 1617 में सर थॉमस रो आए थे कोर्ट ऑफ जहांगीर को रॉयल एम्बेसडर बन के फ्रॉम कोर्ट ऑफ जेम्स वन, एक परमिशन लेने के लिए, ताकि जहांगीर उन्हें फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने की परमिशन दे दें मुग़ल एम्पायर में। और इंग्लिश ने अपनी फैक्ट्रीज आगरा, अहमदाबाद और ब्रॉच में बनाए जहांगीर के परमिशन की वजह से। 1639 को इंग्लिश ने
द्रास ले लिया किंग ऑफ चंद्रागिरी से, और एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट बिल्ड कर दिया सेंट जॉर्ज फोर्ट वहाँ पे। उसके बाद चार्ल्स टू जो प्रिंस थे इंग्लैंड के, उन्होंने बॉम्बे दे दिया 10 पाउंड के एक एनुअल रेंट पे टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1690 को इंग्लिश ने 3 विलेजेस परचेज किए, सुतानवती, कलिकता और गोविंदापुरा, जो हुगली रिवर के पास है। और उन्होंने वहाँ पे फोर्ट विलियम करके एक फोर्ट बिल्ड किया जो कलकत्ता के पास ही था। अब 18 सेंचुरी तक कलकत्ता जो था उनका कैपिटल सिटी बन गया था। और फ्रेंच की तरफ बढ़ते हैं तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था 1664 में। उन्होंने पहला फैक्ट्री बनाया सूरत में 1668 में, उनके आने के 4 साल बाद। और उन्होंने कई और जगह पे फैक्ट्रीज बनाए, माहे, मछलीपट्टनम, कासिम बाज़ार, बालासोर, कराईकल, चंद्रनगरी। अब 1674 में फ्रेंच ने वलीकंडापुरम लिया एक मुस्लिम ऑफिशियल से, और उसे डेवलप किया एक मेजर ट्रेड सेंटर में। और उन्होंने उसे पुडुचेरी या पौंडीचेरी के नाम से भी हम जानते हैं। अब बढ़ते कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। विच कमोडिटी हैड ग्रेट डिमांड इन यूरोप? आपको पता है कि हम लोगों ने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था, पेपर, कैडमम और जिंजर जो स्पाइसेस थे उनका ग्रेट डिमांड था यूरोप में। सेकेंड, व्हाट वाज कॉन्स्टेंटिनोपल ऑल्सो नोन एज? ऑल्सो नहीं है वहाँ पे, मैंने बोल दिया। देखा, मैंने आपको कहा था कॉन्स्टेंटिनोपल वाज ऑल्सो नोन एज द गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड, मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड इन 1453? अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो आपको इतना ही लिखना है, इन 1453 ऑटोमन टर्क्स कैप्चर्ड द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और अगर 2-3 मार्क का रहेगा तो आपको वो पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करना होगा, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। व्हाट वाज द रीजंस फॉर द ट्रेड बीइंग अनप्रॉफिटेबल? अब यहाँ पे पूछे रीजंस क्या थे, तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा कैसे ऑटोमन टर्क्स ने कैप्चर करने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स डाल दिए, और फिर टर्क्स ने टैक्स डालने की वजह से ट्रेड इतना प्रॉफिटेबल नहीं बना, लोग ने ट्रेड प्रेफर नहीं किया उसके बाद। अब 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द इन्वेंशंस दैट हेल्प टू फाइंड न्यू सी रूट टू इंडिया। और वहाँ पे 3 इन्वेंशंस दिए हैं जो है कंपास, एस्ट्रोलेब्स एंड गन पाउडर। और अब हम बढ़ते हैं 6th की तरफ। हु इज़ रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर? हमने देखा अल्फोंसो दे अल्बुकर्क है जो फाउंडर है पोर्चुगीज एम्पायर के। फ्रांसिस्को दे अल्मेडा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ब्लू वाटर पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था, वो वाइसरॉय बन के आए थे। उन्होंने पोर्चुगीज़ एम्पायर के लिए कौन सा भी वॉर नहीं वेज किया था किसी भी ऑफिशियल के ऊपर। उन्होंने पूछा हु इम्प्लीमेंटेड ब्लू वाटर पॉलिसी? देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा इम्प्लीमेंटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। हु गेव बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी? चार्ल्स टू। जेम्स 1 जो थे उन्होंने परमिशन मांगी थी। चार्ल्स 2 जो है उन्होंने बॉम्बे दिया था एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स। लास्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज रीनेम्ड एज पुडुचेरी? वलीकंडापुरम। फ्रेंच जो थे उन्होंने इसे एक लिया था एक मुस्लिम ऑफिशियल से, और फिर डेवलप किया एक मेजर ट्रेड सेंटर में, और फिर इसका नाम रख दिया पुडुचेरी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कर्नाटिक वॉर्स पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर बैटल ऑफ प्लासी बक्सर भी कर दूंगा उसके नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आ रहा है। सो अपने घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दी वीडियो इफ़ यू लाइक। और आपको किसी भी कंसेप्ट पे कोई भी प्रॉब्लम रहेगी या कोई भी डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे से लिख दीजिए।